So today we will discuss about the electric field due to infinite plane sheet, and we will write consideration in this. Before every derivation you have to write a consideration. So here the consideration is: consider an infinite plane sheet of charge density. If you remember in the first derivation, the first application, we wrote linear charge density because we considered line charge. But since here we are considering a plane sheet, so we will consider a charge density, that is surface charge density, denoted by sigma. फर्स्ट केस में हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी कंसिडर की थी लैम्डा, और सेकेंड एप्लीकेशन में हम कंसिडर कर रहे हैं इनफाइनाइट प्लेन शीट, तो हम कंसिडर कर रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. Now, since it is a infinite plane sheet, means we don't know how big it is. So we'll consider a small part of it, and for that small part, we will consider a small Gaussian surface here. This is the small Gaussian surface we have considered. Of area A. This area is A. And how much area of the plate it is covering? प्लेट का कितना एरिया कवर कर रहा है ये? अगर इसका खुद का एरिया A है तो प्लेट का एरिया भी तो A ही कवर करेगा ना. So this area will also be A. Now since this is a plain infinite sheet and very thin sheet, so the flux from this plane sheet will be outward like this, and backward will be like this. तो इससे दोनों तरफ फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, जो इसमें से पास होगा. तो so now we will draw an area vector. The area vector, ये इसका एरिया वेक्टर है. So this is the direction of electric field and area vector. So how much will be the flux? The flux will be, if we consider, before calculating flux, area vector dA or A, consider a small area dA and the small flux passing through it. अब हमने क्या किया है, इस पूरे एरिया का एक छोटा सा एरिया यहाँ एज्यूम किया dA, और उसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा? स्मॉल फ्लक्स d phi, और वो होगा E dA cos of theta. Since theta is equal to 0 and cos 0 is equal to 1, so flux, we can write it here d phi 1, first flux, E dot dA. So total flux can be obtained by integrating above equation.
between the limits between the limits 0 to a, ये टोटल एरिया है a, जहां मेरा कर्सर इस टाइम मूव कर रहा है, और ये छोटा सा एरिया हमने अज्यूम किया। तो जब हम इस छोटे 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 एरियाज को टोटल करेंगे तो ये टोटल एरिया a आ जाएगा, तो इसमें से हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन डी फाई 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए 0 टू a। तो phi 1 यानी कि टोटल फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट एंड इज EA, इक्वेशन नंबर 2। Similarly, if you remember, there was another area on the left hand side. There was an area on the right hand side. Similarly, there is an area on the left hand side also. So we can say that area is second area and this is first area. So what can be the value of d phi 2 or phi 2? phi 2 के लिए हम क्या वैल्यू लिख सकते हैं? E into A only। देखो यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड E जा रहा है और इसका एरिया भी A ही है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? phi 2 is equal to E into A। और यहां भी एंगल क्या है हमारा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया है, दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0। तो अगर थीटा 0 है तो वही वाला कंडीशन आ गया जो हमने फर्स्ट के लिए हमने डिराइव किया था। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E, एरिया A, यहाँ भी थीटा 0। तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 इज इक्वल टू phi। तो अगर हम इसमें दोनों की वैल्यूज को रख दें तो दोनों की वैल्यूज तो सेम है, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा? 2EA। 2EA। Okay, according to Gauss's theorem. Samiksha, what is Gauss's theorem? Charge per unit permittivity of free space। Yes, the flux is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed। तो अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ कितना चार्ज एनक्लोज है? इसमें इस एरिया में कितना चार्ज होगा? ये गॉसियन सरफेस उतना ही चार्ज तो एनक्लोज कर रहा है ना जितना एरिया है। तो इसके लिए हमने क्या किया? डेंसिटी कंसिडर की कि मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो चार्ज था वो सिग्मा है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का चार्ज क्या होगा? 2 सिग्मा। तो A सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने एरिया को A माना ना, तो A सेंटीमीटर स्क्वायर का चार्ज कितना होगा? A सिग्मा। A सिग्मा। तो हम यहाँ Q की जगह लिख सकते हैं A सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, where Q is charge on charge enclosed by area A। Now from equation, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बोला था कि फ्लक्स निकालने के दो मेथड हैं, लेकिन फ्लक्स कैलकुलेशन, फ्लक्स वही है जो उस एरिया में से पास हो रहा है। फ्लक्स वही है जो यहाँ से पास हो रहा है, लेकिन उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक गॉस थ्योरम है और एक जो हमने फॉर्मूला अभी लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, सो फ्रॉम इक्वेशन 6 and
फोर्थ, तो 2EA इज इक्वल टू A सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। A से A कट गया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 अपॉन सॉरी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, गॉसेस थ्योरम हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स की? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की। और कूलम्स लॉ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में हेल्प करता है किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स की? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे कि हम क्या कर रहे हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। और एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए कौन सा फॉर्मूला आता है? Q upon 2 pi epsilon. लैम्डा बाय R। और इनफाइनाइट प्लेन शीट का कौन सा फॉर्मूला आता है जो अभी हमने डिराइव किया? इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए कौन सा फॉर्मूला आ गया हमारे पास? Sigma upon 2 epsilon. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें तुम्हें क्या खास बात नजर आ रही है कि यहाँ डिस्टेंस नहीं आ रहा, देखो यानी कि प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि इसमें से जो लाइंस निकलती हैं वो बिल्कुल सीधी निकलती हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो हमने शीट एज्यूम की उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है और उसके बाद मीडियम कौन सा है, बस इन दो बातों पे डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन प्लेन शीट, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस बात को लिख लो। नंबर 2 permittivity of space। These graphs are for variation of electric field in 3 conditions: for a point charge, for a line charge, and for a sheet. If we assume if we assume 2 charge sheets, there is one charge sheet here, this is positive, there's another charge sheet over here, this is also positive. So what will happen if this is 1 and this is 2? Both are having the same charge density, or let us consider the different charge density. Consider that both are having a different charge density, that is sigma 1 and sigma 2. So if the charge density is different, will they have a same electric field? Or different electric field? So what is the formula for the electric field due to a plane charge sheet? Plane charge 1 upon 2 pi. No, that was for a line charge. ये जो अभी हमने डिराइव किया, E is equal to sigma upon 2 epsilon. Sigma upon 2 pi
हाँ, तो अगर सिग्मा डिफरेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट होगी। डिफरेंट होगी। तो E1 होगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन और E2 होगी सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स डिफरेंट होंगी। तो सेंटर में क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी E2, और 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। Due to 1 the electric field will be like this. E1 तो होगा क्या, अगर ये डिफरेंट है तो सेंटर में क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा दोनों का, E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सिग्मा 1 ज्यादा है या सिग्मा 2 ज्यादा है। क्लियर हो गया? यस सर। यहां क्या होगा इस पॉइंट पे, यहां E2 ऐसे होगी और E1 तो आई ऐसे रही है, तो E1 भी ऐसे होगी और E2 भी सेम डायरेक्शन में होगी। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा, दोनों का सम। Here E2 will be like this and E1 will also be like this। तो यहां भी क्या होगा, E1 प्लस E2। देखो यहां थीटा 0 होगा ना, तो तुम्हें वो फॉर्मूला याद है वेक्टर एडिशन का, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos ऑफ थीटा। इस थीटा की बजाय यहां पे हम लिखेंगे 180 डिग्री और यहां पे लिखेंगे 0 डिग्री और यहां लिखेंगे 0 डिग्री। तो जब हम थीटा को 0 डिग्री लिखेंगे तो cos 0 क्या होगा, 1। 1। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2AB, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल होगा, तो ये a प्लस बी आ जाएगा। लेकिन जब तुम थीटा को 180 रखोगे तो cos 180 हो जाता है -1। तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2E1 E2। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो माइनस 2AB में क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी बचेगा। समझ आया नहीं? यस सर। तो ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जिसमें तुम्हें इनकी डेंसिटी दे रखी होगी और डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होगा। क्लियर? So you can write with the help of the values of E1 and E2, sigma by 2 epsilon naught, sigma 2 by 2 epsilon। Wherever it is adding, you can write addition of them। तो यहाँ पे आ जाएगा sigma 1 plus sigma 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहाँ पे आ जाएगा अगर E2 माइनस E1 है तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन। और यहाँ पे फिर से भी आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, यही तुम्हारी बुक में डिराइव किया हुआ है। नाउ अगर मैं इन दोनों शीट्स को डिफरेंट चार्ज का एज्यूम करूं तो फिर क्या होगा, अगर मान लो ये पॉजिटिव है
if we consider two plates of different charge, one is positive and another one is negative. So what will happen now? Due to negative, the electric field will be inward. This is 1 and this is 2. Here also electric field will be inward, E1. Here also electric field will be inward. Okay. If the both are in the same direction, then it will be E1 plus E2. तो सेंटर में हो जाएगा E1 plus E2. यहाँ पे वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो गई, तो यहाँ हो जाएगा E1 minus E2 और यहाँ भी E1 minus E2. कंडीशन समझ आ गई? Yes. So when the sheets are of different charge, nature of the charge will be different. This is sigma and this is also sigma. Is it clear to all of us?